So today's topic of discussion is land degradation and conservation measures. Means when we talk about land degradation, means we should try to understand the fertility of soil. ठीक है, whether it is useful for agricultural activity or not. Then we will say that it is better piece of land unless they are, you can say they have all nutrients. Clear? So land degradation means there is no fertility of any type of vegetation. Clear? We will say that the quality of soil has been degraded. Understood? Means your quality of soil, okay, becomes low, right, in land degradation. So we will have, you have seen 95% of our basic needs for food, shelter सब पता है कि लैंड से ही मिलता है. ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये सब हमारे लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं. ठीक है, और इस तरीके से क्या है, वी हैव गॉट नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी and natural causes. What are natural causes? Such as flood, जैसे फ्लड आ जाता है. ठीक है, सुनामी आ गया है ना. ठीक है, और क्या आ गया, ड्रॉट आ गया. ठीक है, अर्थक्वेक तो कभी कभार आता है. ठीक है, एक्सेट्रा. राइट, कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, ऑल कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, इससे हमारा लैंड जो है डिग्रेड होना ही होना है. ह्यूमन एक्टिविटी में खास तौर से व्हेन वी आर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, and these insecticide and pesticides being chemicals, if we are using them in excess then they are settled in soil. ठीक है, and they kill the bacteria which are responsible for nitrogen fixation. Understood? So in this case, your soil fertility reduces because soil cannot absorb nitrogen. ठीक है, because soil should be nitrogenous in order to give हाई फर्टिलिटी, हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप. ठीक है, तो ये हमारे नाइट्रोजनस जो भी हमारे क्या कहते हैं, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दैट इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ठीक है, दे आर किल्ड बिकॉज ऑफ these chemicals used in insecticides and pesticides. So we should use limited quantity of these things. It should not fall on soil, it should fall on leaves of plants and stem of plants. It should not go in touch with soil, otherwise it will lose your soil fertility. This is one of the major cause of land degradation. Okay, another human activities, you have done deforestation. ठीक है, right? तो human activities कौन कौन सी हैं जो लैंड डिग्रेड करती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज causing land degradation, है कि नहीं? Deforestation. Clear? So first one is deforestation. ठीक. सेकेंड क्या है? ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग. थर्ड ये है माइनिंग. वेरी गुड. माइनिंग. ओवर इरिगेशन. वेरी गुड. ओवर इरिगेशन तब सही. ठीक. एंड यूज ऑफ एक्सेस केमिकल्स. ठीक है, यूज ऑफ एक्सेस केमिकल. ठीक है, दैट इज द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. राइट, तो अब हम लोग एक एक करके अगर डिस्कस करें तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स वी हैव अ डिप्लीटेड फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज. ठीक है, to satisfy the greed of few individuals.
है कि नहीं? जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर सप्लाइंग दीज थिंग्स, ठीक है, तो वी हैव डिफॉरेस्टेड, राइट? सो इट हैज कॉस्ट damage, means land has been degraded because these trees, they used to conserve soil, means soil erosion is checked by trees, but trees are cut, then who will perform soil erosion now? Isn't it? So your soil will convert into desert, understand, in future, if the plantations are not done. Otherwise you have to grow crops. अगर आपका फील्ड आपने लैंड क्लियर किया है, यू हैव टू फ्रीक्वेंटली ग्रो क्रॉप्स देयर. इफ यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग क्रॉप्स, देन इट विल बिकम डेजर्टेड, है कि नहीं? कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करते रहना है, नहीं तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. राजस्थान में यही हुआ, ठीक है, कि पीपल हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, बिकॉज ऑफ यू कैन से देयर वाज नो मानसून रेनफॉल, isn't it? So people left their agricultural activities, and these lands, they were finally converted into desert, and it is still desert, isn't it? Because of no rainfall, है कि नहीं? Yes, it happened. Similarly, हमारे forests are responsible for rainfall. Do you know? Forest also takes responsibility for that, because they used to perform transpiration, है कि नहीं? And this transpiration creates condensation, means because of low temperature in atmosphere there is precipitation, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देने से हमारी लैंड की क्वालिटी क्या हुई? डिक्रीज हो गई, ठीक है? एंड सेकंड इज ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग मीन्स अर्लियर वी हैड टू परफॉर्म pastoral activities, isn't it? Pastoralists, they had to graze their cattle. They had huge herd of animals. They used to move from one place to another according to season. So what happened? They had to uproot them. वो लोग उसको ग्रेजिंग करते थे, चलते थे, तो उसके साथ उसकी जड़ सहित उखड़ जाता था प्लांट. जो भी वेजिटेशन होते थे, दे हैड टू, मीन्स अगर उसको ग्रेज करना है तो ऊपर का पोर्शन ऐसे कट करें, जैसे ये प्लांट है, तो इट शुड बी कट फ्रॉम हियर. इतना चीज खा जाए, लेकिन इतना तो बचना चाहिए ना. लेकिन वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं कि पूरा जड़ से उखड़ जाता है. दैट इज ओवर ग्रेजिंग. मीन्स वेजिटेशंस आर अपरूटेड, दे विल नॉट ग्रो अगेन. Understand? So it means degraded this land. Understand? This is also a cause, and remaining causes are very well. Mining. Mining करते समय what we do? We clear vegetation. While mining, first we clear the vegetation from earth's surface, isn't it? Then we remove all dirts and dust, all soil particles. Finally we comes to the ore. ठीक है? After digging them, after removing layer by layer, right? So it is also a cause of degradation. Understood? So you have got a very worse work, that is mining, ठीक है? And then over irrigation, ठीक है? When we draw groundwater more and more from underground level, ठीक है? Then what will happen? Water table it goes down, है कि नहीं? And finally what happen? Your hand pumps will dry up, wells, water level will go more and more down, you cannot receive water. Secondly, when you need again irrigation, you will have to again do boring, है ना? और deep boring करनी पड़ेगी, and it is not very quick process, it takes long time, है कि नहीं? तो meanwhile your land has been degraded because of improper water supply, राइट? इट वॉज डन बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन, ठीक है? हर कोई पंपिंग सेट से जो है इंजन चला के पानी ड्रॉ कर रहा है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा वाटर, पता लगा खेत बह रहा है तो भी पानी भरा जाएगा, है ना? पूरा खेत ओवरफ्लो हो गया, 1 घंटे बाद पता लगा कि अरे पूरा खेत भर गया है, वहीं से चिल्लाता कोई गाँव में, ठीक है? तब जा कर के इंजन बंद करने जाते हैं, नहीं तो इंजन चलता रहता है, आइडिया नहीं रहता है. तो यही ओवर इरिगेशन है. हमें जितना ज़रूरत है वाटर हमें ड्रॉ करना चाहिए, उसका डबल वाटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं? तो इसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेड होगा. क्लियर? एंड यू हैव गॉट अनदर इज यूज ऑफ एक्सेस केमिकल्स ऑल्सो, ठीक है?
आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में आपने एक्सेस जो है केमिकल्स यूज किए, ठीक है। इट हैड किल्ड योर बैक्टीरिया दैट इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, है कि नहीं। तो इससे क्या है कि लैंड विल डेफिनेटली डिग्रेड, इट्स फर्टिलिटी गो डाउन, ठीक है, इसकी एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है, इट चेंजेस। प्लांट ग्रो करने के लिए पीएच कितना होना चाहिए सॉइल का, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, उसकी एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो बेटा वो भी है, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो राइट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, बिकॉज वी डोंट डिस्पोज देम प्रॉपरली, वी यूज टू डंप देम, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर प्लेस, इट क्रिएट्स योर सॉइल पॉल्यूशन एंड इट डिग्रेड द लैंड, है कि नहीं। देयर आर मेनी प्लास्टिक्स, मेनी टाइप्स ऑफ सच थिंग्स विच आर नॉट they cannot disintegrate, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पलेस टू डिकम्पोज देम, ठीक है। तो फाइनली दे रिमेन्स इन द सॉइल एंड दे रिड्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे सॉइल तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में पॉलीथीन आ गया, है कि नहीं, तो उसने क्या किया, उसकी सप्लाई कट कर दी, तब उसके नीचे जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया वो कैसे करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो अब बायोडिग्रेड हुआ ही नहीं, वैसे पड़ा हुआ है, तो इट कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन हियर, ठीक है। सो देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, ठीक है, यही हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, दे शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, ठीक है, देन डिस्पोज ऑफ, अंडरस्टूड। तो ऐसे माइनिंग साइट्स जैसे आपकी बुक में दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ माइनिंग की वजह से। जब भाई माइनिंग अगर वहाँ करनी है तो जितना फॉरेस्ट है उसको तो क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो माइनिंग होगी कैसे, ठीक है। तो ये सब एरिया में डिफॉरेस्टेशन बम्पर हुआ माइनिंग के लिए, ठीक है, और इस वजह से वहाँ का लैंड पूरी तरह से डिग्रेड हो गया, अब वहाँ कोई वर्क नहीं कर सकते। इसी तरीके से महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग, ये ओवर ग्रेजिंग आपका मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। यहाँ ओवर ग्रेजिंग की वजह से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन है, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल चॉइस में भी, राइट। सो यू शुड नो ऑल दीज स्टेट्स वेयर व्हाट काइंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन टुक प्लेस। तो आपने देखा था झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ, है कि नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ वही दोनों के लिए आएगा ना, डिफॉरेस्टेशन माइनिंग, दोनों माइनिंग की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन, चलो इसको माइनिंग में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एमपी, झारखंड, ठीक है, हाँ उड़ीसा एक्सेट्रा, ठीक है, मेनी स्टेट्स आर देयर, क्लियर, यू शुड नोट डाउन। फिर उसके बाद हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ भी ओवर इरिगेशन हुआ, ठीक है, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी देयर इज ऑल्सो ओवर इरिगेशन, ठीक है, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, ठीक, यहाँ सब लोगों के पास कॉम्पिटिशन है, बहुत सारा हरियाणा हो जाना, इसलिए वहाँ ओवर इरिगेशन हुआ, क्लियर। तो इस तरीके से द मिनरल प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, वाटर लॉगिंग भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ड्यू टू वाटर लॉगिंग, वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है, मीन्स वाटर इज कलेक्टेड, ठीक है, इन लार्ज एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया। सो व्हाट विल हैपन, वी कैन नॉट ग्रो एनीथिंग बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, ठीक है, वो भी लैंड आपका डिग्रेडेड है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन,
सीमेंट फैक्ट्री, इसमें से खूब डस्ट पार्टिकल्स आर लिबरेटेड, ठीक है, इट गोज इन एटमॉस्फियर एंड फाइनली दे सेटल डाउन। जब वो आपके एग्रीकल्चरल लैंड पे सेटल डाउन होंगे, दे विल मेक अ लेयर ऑफ सैंड पार्टिकल्स और सिरेमिक्स, ठीक है, तो दे विल कट सप्लाई ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द सॉइल, देन देयर विल बी नो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फाइनली लैंड इज डिग्रेडेड, ठीक है, तो इनकी वजह से भी होता है मिनरल्स में। इसी तरह से बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट अभी हमने बात किया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, लिक्विड वेस्ट, ठीक है, इनको हमने बिना ट्रीट किए भेज दिया, ठीक है, और ये हमारे जिस एरिया से पास होंगे वहाँ वाटर लॉगिंग बनती है, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है लैंड हमारे डिग्रेड हो जाएंगे, क्लियर। तो इन दिस वे देयर इज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड हमारा वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन, व्हाट शुड बी सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन का कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं। वी शुड डू एफॉरेस्टेशन, ठीक है, पहले इसका सोल्यूशन क्या होगा, हाँ अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं सबका। एफॉरेस्टेशन होगा, सोल्यूशन ऑफ लैंड, तो एक हमारा लैंड डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता था, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन शुड बी डन, ठीक, हाँ, इसके बाद कंट्रोल्ड ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो हमारा ग्रेजिंग ग्राउंड, मतलब ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे ना, देयर शुड बी कंट्रोल्ड ओवर ग्रेजिंग, हाँ, ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग ऑल्सो, है ना, एंड मिनिमम माइनिंग, है कि नहीं, कम से कम माइनिंग करेंगे, कहाँ रहने दें, बाद में माइनिंग कर लेंगे, यस करेक्ट, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यस, इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, क्लियर। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करना, नहीं, मैनेजमेंट ऑफ ग्रास लैंड को मैनेज करना कि भाई इसी एरिया में ही आप लोग जो है ग्रेजिंग करो, एक पार्टिकुलर ग्रास लैंड उसके लिए होना चाहिए ना, हर जगह थोड़ी ना ग्रेजिंग करवाते फिर, राइट। ये सारी चीजें हमारे दे आर द सॉल्यूशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज another topic is soil as a resource, ठीक, हमारा सॉइल भी एक रिसोर्स है, क्लियर, एंड दिस रिसोर्स शुड बी कंजर्व, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, सॉइल कैन बी रिन्यूड, ठीक है, सॉइल इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, क्लियर। सॉइल हमारा सबसे मेन क्या है, इट इज रिन्यूएबल, उसकी फर्टिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके जो है हम केमिकल्स वगैरह, मतलब जैसे इसकी पीएच वगैरह को टेस्ट करके, ठीक है, उसके पीएच को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, तो एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन देके कि भाई यही फर्टिलाइजर डालेंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी पीएच मेंटेन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली क्रॉप्स आपका अच्छा ग्रो होगा, क्लियर। इसीलिए हमारे वहाँ उसको सॉइल को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि द सॉइल इज एक क्या है, लिविंग सिस्टम है, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स आपके सॉइल में ही बहुत सारी चीजें ग्रो होती हैं, ठीक है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर डन ऑन सॉइल, है कि नहीं,
और सॉइल का जो है इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सॉइल का एक पार्टिकुलर प्रोफाइल है, इट हैज अ पार्टिकुलर प्रोफाइल एंड इट विल कंसीडर दिस प्रोफाइल। तो सबसे ऊपर टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल जिसको हम अपर सॉइल कहते हैं, दिस इज योर टॉप सॉइल। इसी टॉप सॉइल में हमारे वेजिटेशन ग्रो होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स, इसीलिए इसको ग्रीन कलर से आपकी बुक में दिया है, ऑल ग्रीन प्लांट्स ग्रो हियर, ठीक। फिर उसके नीचे दिया सब सॉइल, ठीक है, दे आर वेदर्ड रॉक्स, ठीक है, दे आर यू कैन से वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक, ठीक है, मेन वेदर्ड रॉक्स। क्योंकि अगर हमें माइनिंग करनी होती है तो हम यही टॉप सॉइल को हटा देते हैं, तब नीचे वेदर्ड रॉक आता है, ठीक है। फिर उसमें चेक करते हैं इसमें ओर्स है कि नहीं, राइट, नहीं इसको भी हटा करके और नीचे जाएंगे, क्लियर। तो ये चीजें हैं। उसके बाद सबसे नीचे क्या है, पैरेंट रॉक मटेरियल, दे आर पैरेंट रॉक मटेरियल, रॉक मटेरियल, ठीक है। ये मेन रॉक है, बड़े होते हैं, ठीक है, दे आर आल्सो बिग रॉक्स, ठीक है। और सबसे नीचे पैरेंट बेड रॉक, ये आपका पैरेंट बेड रॉक, दिस इज आवर सॉइल प्रोफाइल, क्लियर। तो इसमें क्या है, ग्रीन वेजिटेशन, what we are talking about all human activities done in top soil, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, इसी में स्नेक्स भी बिल बना के रहते हैं, है कि नहीं, और इसी में बहुत सारे हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, क्लियर। और यहीं पे वेजिटेशन ग्रो होगा, इसी पर हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर डन हियर, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमारे सॉइल प्रोफाइल से क्लियर हो जाती हैं, क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल्स आर क्लासिफाइड इन इंडिया, ठीक है। अब हम लोग एक एक सॉइल का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल एंड दिस लेसन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसमें आपका सबसे मेन सॉइल, ठीक है, दैट इज फॉर वेजिटेशन इज alluvial soil, alluvial soil, क्लियर। तो alluvial soil जो होता है दे आर स्प्रेड, ठीक है, बाय रिवर्स, जितने भी आपके रिवर्स होते हैं वो इसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली इंडस, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है, इट इज स्प्रेड बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, है कि नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर। ये आपने बहुत सारे लोअर क्लासेस में भी पढ़े एलुवियल सॉइल के बारे में। अब हम लोग इसके मेन पॉइंट्स खाली देखेंगे, ठीक है। और ये स्पेशली राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, फिर इधर यूपी, ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है, नियर डेल्टाज ऑफ, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, महानदी एक्सेट्रा, महानदी, ऐसी तो बहुत नदियाँ हैं, नाम लिखेंगे,
एक्सेट्रा का तो पता है आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, राइट। स्पेशली आपको बता दें इन इंडिया हियर दिस कोस्टल एरिया दिस पोर्शन दे आर ऑल्सो एलुवियल सॉइल, coastal plain in India they are consist of alluvial soil. Why? It is because most of the rivers they goes in Arabian Sea और Bay of Bengal, ठीक है। तो ये हमारे जो ये आपका यहाँ पे मालाबार कोस्ट, ठीक है, यहाँ कोंकण है, यहाँ कन्नड़ है, ठीक है, यहाँ नॉर्दर्न सिरकार है, यहाँ कोरोमंडल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि इन दीज एरियाज में रिवर कम्स, यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, ये फॉर्म्स डेल्टा एंड डोआब्स, ठीक है। इस वजह से यहाँ का सॉइल आपका एलुवियल हो जाता है, राइट। इसी तरह बहुत सारे हमारे वेस्टर्न घाट पे कई रिवर्स है जो कि आपके अरेबियन सी में जाते हैं, दे ऑल्सो मेक्स डेल्टा एंड डोआब्स, दैट्स वाई सॉइल ऑफ कोस्टल रीजन दे आर ऑल्सो एलुवियल, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है, फिर उसके बाद इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, और इधर इंडस प्लेन, पंजाब प्लेन जिसको कहते हैं, पंजाब प्लेन, क्लियर, दे आर एलुवियल सॉइल, दे हैव एलुवियल सॉइल, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, क्लियर। इन सब चीजों से मिलकर बना होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनका क्या होता है, ये रिवर वैलीज में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्लोप हमारा ब्रेक हो जाता है। और इसके साथ साथ ये कुछ और जगह डोआस, चौस एंड तराई बेल्ट जो है बिहार का एरिया, तराई बेल्ट, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये सब, खद्दर और बांगर, ठीक है, दो तरह के सॉइल 9th में आपने पढ़े थे, खद्दर एंड बांगर, खद्दर एंड बांगर आ गया। तो ये क्या होता है, जो हमारा बांगर है ये ओल्ड एलुवियम, बांगर इज ओल्ड एलुवियम एंड खद्दर इज न्यू एलुवियम, ठीक है। खद्दर में कंकड़ भी पाए जाते हैं, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इन दिस एरिया स्ट्रीम्स ऑफ दीज रिवर्स डिसअपियर, ये रिवर्स की जो स्ट्रीम है वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं एंड इट डेवलप्स स्वैम्पी एरिया, ठीक है। और कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से ये कैल्कैरियस पार्टिकल्स हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे मेक्स कंकड़, ठीक है। ऐसे कंकड़ जो छोटे छोटे जो शिवलिंग वगैरह आता है ना, घरों में लोग रखते हैं, छोटे छोटे ऐसे पत्थर गोल गोल स्मूथ पाते हैं, तो वो सब यही डेवलप हो जाते हैं तराई एरिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर बिकॉज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, ठीक है, इसीलिए इसका नाम खद्दर पड़ा, ठीक है। और बांगर जो खद्दर है इसमें मतलब बांगर में ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है, खद्दर में मोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसलिए बांगर इज मोर फर्टाइल दैन खद्दर, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल एज अ होल पूरी तरह से आपका फर्टाइल होता है, इसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है। कौन कौन सा केमिकल होता है, पोटास, इट कंटेन पोटास, ठीक, it contains potash, phosphoric acid and lime, ठीक है। ये एलुवियल सॉइल का आपका टेक्सचर है, क्लियर। और इस तरीके से यहाँ सबसे ज्यादा क्या ग्रो होगा, शुगर केन, पैडी एंड व्हीट, ठीक है, शुगर केन, पैडी एंड व्हीट, these crops are grown better here in alluvial soil, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सॉइल है इट इज मोर अल्कलाइन, ठीक है,
सॉइल इज मोर अल्कलाइन। एलुवियल सॉइल क्या होता है? मोर अल्कलाइन होता है। क्लियर? यानी इसका पीएच 7 से 14 के बीच में होता है। एलुवियल सॉइल का पीएच 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, इसलिए हमें इसकी अल्कालिनिटी पे ध्यान देना होता है। जब सॉइल टेस्ट करते हैं तो पीएच हमें 7 से 14 के बीच में रखना होता है, तब एलुवियल सॉइल अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर सॉइल, दैट इज योर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन प्लेटो। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट, और इसके साथ साथ आपका जो है मध्य प्रदेश में भी है एंड गुजरात में भी है। ठीक है, गुजरात भी सेंट्रल हाईलैंड में आता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा जो है ब्लैक सॉइल मिलता है बिकॉज ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, ड्यू टू इग्नियस रॉक, ठीक है, फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ का सॉइल इग्नियस हो गया। ठीक है, एंड व्हेन दे वर डिकम्पोज्ड, फाइनली दे बिकम पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, एंड दे आर कंसीडर्ड एज ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसी ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन आया था, इट इज ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल, इसको कहेंगे। ठीक है, इसको इसका नाम रखा गया रीगर सॉइल। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या सपोर्ट होता है? कौन सा क्रॉप? कॉटन क्रॉप्स ग्रोज बेटर। ठीक है।